Okay, good morning everyone. Today's topic is human values and professional ethics. It is one of the compulsory subject and journal type subject which you need to study in your paramedical course. Maybe you are of MLT, radiology, OT or any of the paramedical domain, but you have to study this course. See, there are two types of subject in your whole paramedical course. One is generic subject and second is skill based subjects. So skill based subjects are those subjects which are directly related to your profession, and general subjects are those subjects which are not directly related to your subject, but of course they are very much required to be studied by you during your course. For example, you are studying English, you are studying computer, you are studying national healthcare system, and you are studying this subject in your third semester, that is human values and professional ethics. So we will start this topic. What is human values and professional ethics? होता क्या है ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स? अगर हम बात करें वैल्यू, देखिए आपको भी पता है इट्स अ जर्नल टर्म दैट ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स. इफ यू आर इनटू योर प्रोफेशन you have to maintain some professional ethics, but professional ethics does not mean that you should be very professional in your education or profession, that because you are directly related to your paramedical subject, you are related to the medical subject, you are related to the patient, you are related to the people who are already suffered with any of the disease, or they want their wellness in their life, right? There are two types of people only. One is that someone is patient, and second one is that you want to maintain your health, you want to keep your self fit, right? So this can be done by maintaining the professional values and ethics, right? Now what is the need of value education? वैल्यू एजुकेशन की नीड है ही क्यों? हम पढ़ते ही क्यों है वैल्यू एजुकेशन? लाइक लगता नहीं है ऐसा कभी कि वाई वी आर स्टडिंग वैल्यू एजुकेशन? ये तो कहीं स्कूल में पढ़ाई जाती थी कि मॉरल वैल्यूज की स्टोरी पढ़ाई जाती थी कि बी इन यूनिटी, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट, राइट? लेकिन आपको नहीं लगता कि दीज वैल्यूज आर इम्पोर्टेंट इन आवर होल लाइफ, नॉट ओनली फॉर द चिल्ड्रन? क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हें तो हम कुछ भी समझा देते हैं और वो समझ जाते हैं कि ठीक है बेटा, झूठ नहीं बोलना, यू हैव टू बी वेरी वेरी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी केयरफुल. ये सब चीजें हम बच्चों को सिखा देते हैं और वो उसे एक स्लोगन की तरह समझ लेते हैं कि यस वो हमें करना है. बट अभी आप जिस तरह से, जिस एनवायरमेंट में यू आर गोइंग टू डेवलप, यू आर यंग जनरेशन एंड यू आर डेवलपिंग इन एनवायरमेंट जहां पर मीडिया, सोशल मीडिया, मीडिया मीन्स टेलीफोन मीडिया, सॉरी नॉट टेलीफोन, टेलीविजन मीडिया, मोबाइल मीडिया, सोशल मीडिया, these medias are just diverting our mind to some extent, and we don't know whether whatever they are spreading is right or wrong. हमें ये पता भी नहीं है कि वो जो चीज हम सुन रहे हैं टीवी में या देख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो कुछ भी हमें पढ़ा रही है वो सही है या नहीं, वो हमें पता भी नहीं है. एंड तब भी हम उस पर बिलीव कर लेते हैं कि यस ओके इट इज देयर, इट इज नॉट देयर, और हम उस चीज के लिए अपना डिपेंड रहते हैं कि ठीक है इट्स लाइक दिस ओनली. बट नाउ, so what is the need of value education? Need of value education because in modern context where globalization, consumerism, fundamentalism have gained stronger roots, the impact of mass media, particularly visual media, has tremendous impact in the mind of youth. People many a time are swayed by half truth. I told you that we are swayed by the half truth. There is no easy means to have the holistic vision of the reality
All these lead to confusion and distortion in proper understanding. Right? उससे क्या होता है, कंफ्यूजन होती है और हमें समझ में नहीं आता what is right and what is wrong. That's why value education is very, very, very important. I want to say one thing, that whatever education we gain, it makes us a person who can earn money. This education, whatever we are gaining in universities, in colleges, they are the education by which we can earn the money. But education without values, as useful as it is, seems rather to make a man more clever devil. सिर्फ हम क्या हो जाते हैं, पर बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तो we are becoming the educated devil. We are not a human being, because what the value education which need to be incorporated in our personality, they are missing. वो है ही नहीं हमारे पर्सनालिटी में, और हमें पता ही नहीं चलता, और हमारी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाती है, और वो वैल्यूज हमारी पर्सनालिटीज में से कहीं मिस हो जाती हैं. राइट? अब तो अब what is the objective of this course, human values and professional ethics? To understand the moral values that ought to guide paramedical profession, resolve the moral issues in the profession, and justify the moral judgment concerning the profession. Right? So this is the reason why we study this subject. Now, more human values and professional ethics में अभी हम और क्या पढ़ेंगे, that moral communication to express and support one's view to others. ठीक है? अगर आपको अपने व्यूज दूसरे को बताने हैं तो आप कैसे बताएंगे? रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, विच मीन्स शोइंग कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स बिसाइड oneself. हम we all think for ourselves. हम अपने बारे में सोचते हैं, we don't think for others. हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे. ठीक है? तो वो कैसे, हम दूसरे लोगों को भी हमें रिस्पेक्ट देनी है, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो कोई हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट हो, डॉक्टर हो, या पेशेंट के साथ कोई अटेंडीज हो. हाउ वी हैव टू टेक केयर द इमोशंस एंड द रिस्पेक्ट फॉर all those people who are directly or indirectly related to our profession. Now, tolerance of diversity. Tolerance of मतलब अगर कोई दूसरा बंदा किसी मतलब वो कुछ और है, वो कुछ और कहना चाह रहा है, उसके बिलीव्स कोई और है, उसका रिलीजन कोई और है, हाँ, देयर में बी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो सकता है, बट वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी रिलीजन. हमें सबके रिलीजन को रिस्पेक्ट देनी है. हमें इस चीज में नहीं जाना है कि कौन किस रिलीजन का है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. वी डोंट नीड टू गो इन दैट ऑल दिस थिंग्स. वी जस्ट नीड टू गिव रिस्पेक्ट टू all the religions and to all the people who are in this world, or not the people, to the animals also, but here we are talking about the human values. So moral hope, that is believe in using rational dialogue for resolving the moral conflict. Next, human values has the unique ability to define their identity, choose their values, and establish their beliefs. All three of these directly influence a person behavior. ये जो सब चीजें हैं, एबिलिटी टू डिफाइन, आइडेंटिफाई, हम दूसरे को डिफाइन कैसे कर रहे हैं, हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, राइट? और हम हमारे बिलीव्स क्या है, हमारी सोच क्या है, हम किस विचारधारा के हैं. all three of these directly influence a person behavior. People have gone to great lengths to demonstrate the validity of their beliefs, including war and sacrificing their own life. Now conversely, people are not motivated to support or validate the belief of other when those beliefs are contrary. एक्चुअली हम एक दूसरे के जो बिलीव्स हैं उन्हें वैल्यू देते ही नहीं है, राइट? हम जो हम सोचते हैं, वट एवर वी आर थिंकिंग, वी थिंक दैट वी आर थिंकिंग द बेस्ट, वी आर इन अ राइट डायरेक्शन, बिकॉज वी डोंट थिंक लॉजिकली, और हमारी जो सोच है उसमें एम्पैथी या कंसर्न या ये जो बहुत सारी मॉरल वैल्यूज हैं वो मिसिंग हैं. वो हम समझ ही नहीं पाते कि वो हमारी पर्सनालिटी में है भी या नहीं है. मतलब वी आर नॉट देयर टू इवैल्यूएट आवरसेल्फ.
right? So emotional belief in principle regarded as particularly favorable or important for the individual. So emotional belief भी बहुत important है. Now what are the types of values? राइट कंडक्ट. राइट कंडक्ट मतलब आपका कोई प्रोफेशन है, लाइक यू आर इनटू द प्रोफेशन ऑफ पैरामेडिकल, आप टेस्टिंग में हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. आप एमएलटी के स्टूडेंट हैं, आपको टेस्टिंग करनी है, बट आप पैसा कमाने में हैं और आपको लगता है कि नहीं, बहुत सैंपल है, कोई बात नहीं, प्रेशर है, वर्क प्रेशर है, अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, टाइमली वर्क करना है, तो हम अपनी रिपोर्ट्स में कोई बात नहीं, अगर 19-20 भी वैल्यू आ रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी वैल्यू लिख देते हैं पेशेंट की. अगर आपने सिंपल सा सोचिए, इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ब्लड ग्रुप किसी का गलत बता दिया तो यू आर प्लेइंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट. अगर आपने किसी का ये तो एक, चलो यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ एनी पेशेंट लाइक, बट अगर आपने यू आर टेकिंग अ सैंपल और आपको सिर्फ हीमोग्लोबिन ही बताना है किसी का, लेकिन हीमोग्लोबिन भी आपने उसका बहुत कम बता दिया या बहुत ज्यादा बता दिया. ज्यादा बता दिया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और अगर कम बता दिया तो वो डिप्रेशन में चला गया. तो नाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू हैव कंडक्टेड अ रॉन्ग कंडक्ट. आपका जो कंडक्ट था वो क्या हो गया, गलत हो गया. आपको लगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज द नॉट द मैटर कि आपको क्या लग रहा है. The point is that what is the issue of right conduct. right conduct है ही क्या? right conduct है कि अगर आप ओटी के स्टाफ है तो आपको अपने प्रोफेशन को लेके, ओटी के हैं, एमएलटी के हैं, रेडियो के, किसी के भी हैं आप, अगर आप पैरामेडिकल असिस्टेंट हैं या आप मेन हैं, कुछ भी हैं, बट आपको अपने प्रोफेशन को लेके बहुत ज्यादा अपना जो कंडक्ट है वो बहुत ही अच्छा रखना है, जिससे कि आपके प्रोफेशन, नॉट ओनली कि आपको अपने सीनियर को रिपोर्ट करना है, दिस इज फॉर दिस ओनली दैट दिस इज पार्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यू. वी as a human has to take care of our human values. right conduct, पीस, शांति होनी चाहिए, ट्रूथ, सच बोलना है. चाहे अगर ठीक है डिप्लोमेटिकली हम बात कर सकते हैं इसमें कभी कभी, बट सच, लव एंड नॉन वायलेंस. वी शुड नेवर थिंक अबाउट द वायलेंस. नाउ वैल्यूज रिलेटेड टू राइट कंडक्ट आर, कौन कौन सी वैल्यूज राइट कंडक्ट से रिलेट करती हैं? दीज आर सेल्फ हेल्प स्किल, सोशल स्किल एंड एथिकल स्किल्स. एंड वैल्यूज रिलेटेड टू पीस आर अटेंशन, कामनेस, कॉन्सेंट्रेशन, कंटेनमेंट, डिग्निटी, डिसिप्लिन, इक्वालिटी. ये सब क्या है? दीज आर रिलेटेड टू पीस. ये सब चीजें अगर आप इनको बहुत ध्यान से ये वर्ड देखेंगे, नोट्स अवेलेबल हैं आपके एलएमएस पे, आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको पीस चाहिए तो आपको पहले अटेंशन चाहिए. आप जो भी काम कर रहे हैं अगर आप उसमें अटेंटिव नहीं है तो आपको पीस मिलेगी नहीं. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अटेंशन नहीं है तो आपसे गलतियां होंगी तो आपके सीनियर आपको कुछ बोल भी सकते हैं, या उसका रिजल्ट नहीं भी वो बोलेंगे तो भी उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको रॉन्ग ही मिलेगा. तो अटेंशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, कामनेस इज रिक्वायर्ड. कुछ गलत हो रहा है या मान लो कुछ भी है उसे हमें ठीक करना है, बट विद द हेल्प ऑफ कामनेस. कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो दीज आर सम पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद पीस एंड राइट कंडक्ट, सेल्फ हेल्प स्किल, सोशल स्किल एंड एथिकल स्किल. नाउ व्हाट आर द वैल्यूज रिलेटेड टू ट्रूथ? ट्रूथ क्या चीज है? एक्यूरेसी, मतलब आपके पास आप सच बोलेंगे, क्यूरियोसिटी, डिस्क है ना, फेयरनेस, फेयरलेसनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें होनी चाहिए. और लव के लिए एक्सेप्टेंस, जो जैसा है, एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर, राइट, बट नॉट एवरीवेयर. आप अपने अगर इफ यू आर पेरेंट, आप में से कोई बच्चे ऐसे भी होंगे, स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं, दे आर लाइक दी, जिनकी एज ज्यादा होगी, मे बी सम ऑफ यू आर मैरिड भी हो सकते हो, आपके बच्चे भी हो सकते हैं. सो ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे जैसे भी हम उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है वो शरारत कर रहे हैं तो करने दो, नहीं पढ़ रहे हैं तो मत पढ़ने दो, ऐसा नहीं. पॉइंट को आपको समझना है दैट, बट अगर हमारे साथ हमारे प्रोफेशन में कोई है, राइट,
और हम अगर वो कुछ कह रहा है तो हमें भी उसे भी एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं करना कि हम उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते. सो एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर. यू हैव टू बी अफेक्शनेट विद द पीपल. यू हैव टू बी विद कंपैशन. कंसीडर करना है. यू हैव टू कंसीडर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट. यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बात है वो ये है दैट you what behavior, but behavior you are taking with, you are doing with you are doing with the people who are attached with your hospital, who are working with you, right? So you have to take care about all those things. Now I told you that these are the values. Now, values related to non-violence. What are the values related to non-violence? Psychological, social. अब psychological जो values हैं वो हमारी क्या है? That compassion, concern for others, consideration, forbearance, forgiveness, manners, happiness, loyalty, morality. सीखे देखिए, ये सब वर्ड सुनने में हमने छोटी क्लास से बहुत सुने हैं. लाइक आप लोगों ने अपने स्कूल लाइफ से आप ये वर्ड सुनते आ रहे हो अपनी मॉरल एजुकेशन में, लेकिन ये कहीं ना कहीं मिस है और हमें बार बार रिवाइज करना है इनको कि ये सब हमारी मॉरल वैल्यूज है. ये नहीं कि हमने बस स्कूल में पढ़ा और ये सब खत्म हो गया. This has to be a part of young education also. You cannot ignore it. These values are very much necessary that one has to take care of. Now, what are the social values? That appreciation of others culture and religion. ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो मुस्लिम को कहेंगे अरे नहीं ये खराब है, ये सिख है तो वो खराब है, क्रिश्चियन है तो उसमें ये अच्छा है, ये गलत है. नो, देखिए हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, जिस भी रिलीजन में हमने बर्थ लिया है हमें उस रिलीजन को मानना होता है. ये हमारा एक ड्यूटी है कि हम जो है जिस भी रिलीजन में हैं, राइट, या जिस भी रिलीजन में हमने अपना बर्थ लिया है तो हमें उसी रिलीजन को मानना है और उसी रिलीजन में हम आगे उसके जो बिलीव्स हैं, उसके जो रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, है ना. लेकिन ऐसा नहीं करना कि दूसरे रिलीजन वालों को हमें उनके साथ कोई भी डिफरेंसेस रखने हैं. हमें रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं रखने हैं, राइट. हमें ब्रदरहुड के नेचर में रहना है. और इसके साथ अब जैसे सोशल की बात हो रही है कि दैट एप्रिसिएशन ऑफ अदर कल्चर एंड रिलीजन एंड ब्रदरहुड केयर ऑफ एनवायरमेंट ऑल्सो. अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सपोज यू आर पैरामेडिकल स्टूडेंट. आप अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं. अब आपके पास आपने किस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जस्ट अ सेकेंड. अब आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा दैट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, है ना. कहने के लिए एक सब्जेक्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है मैं आपके मेडिकल प्रोफेशन में, हाउ टू डिस्पोज ऑफ दैट वेस्ट. बट अगर आप उसे कंसर्नली उस सब्जेक्ट को या उस बात को अंडरस्टैंड करें तो द मीनिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द social values. Social values are that we have to take care of the environment also. We cannot disturb the environment. We should not be very careless that वो जो आप सिरिंज यूज कर रहे हो, वो जो आपने ब्लड लिया पेशेंट का, वो आप कहाँ डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, उसकी क्या तरीके हैं कि वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो. और आप जो सीन्स हैं, जो ब्लड है या जो सैंपल्स हैं, वो क्या कैसे आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हो. दिस इज वेरी 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 मच important as far as that environmental values are concerned, right? So citizenship, equality, harmlessness, national awareness. अब ये देखिए, man, human being is a social animal, है ना. आपने पढ़ा होगा स्कूल में दैट ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल. क्यों कहते हैं उसे सामाजिक जानवर कहते हैं उसे. जानवर क्यों कहते हैं, एनिमल क्यों कहते हैं, बिकॉज क्यों कहते हैं, कभी सोचा है आपने कि वाई ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल. एनिमल, सोशल एनिमल, है ना. सोशल जहां वर्ड लग गया दैट यू हैव टू
Be careful about the society. What you are doing. We are a social creature. हम ऐसे नहीं है एनिमल्स की तरह से, जैसे डॉग्स कहीं भी शिट कर देते हैं, कहीं भी अपना सो जाते हैं, कहीं भी कुछ खा लेते हैं. नो नो, इट्स लाइक नॉट लाइक. वी आर सोशल पीपल. We have to maintain our social ethics and how to eat, where to eat, where to do our nature calls and all these things. We have to be very very careful about all these things, because we are a social animal. We are not a just animal, we are social animal, right? So we have to take care of all these things. ऐसा नहीं है जैसे नेशनल एक आदमी, a child born in a family, right? And a family, group of families makes a society, and a society makes a nation, है ना? उससे क्या बनता है? नेशन बनता है. पहले रिलीजन भी बन सकता है, और रिलीजन के बाद हम कहते हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ नेशन. अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं एंड इट इम्पैक्ट्स नेगेटिवली ऑन द इमेज ऑफ द नेशन, देन वी आर नॉट सपोज टू डू दैट थिंग. हमें वो करने का कोई राइट नहीं है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एजुकेशन. रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी. आप किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहे हैं या आप किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं. हॉस्पिटल इज अ प्लेस, स्कूल इज अ प्लेस विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, स्कूल वाले भी फीस लेते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी फीस लेते हैं, हॉस्पिटल पेशेंट से फीस लेते हैं, बट हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, दीज आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द, डायरेक्टली एंड डायरेक्टली रिलेटेड विद द, बोलिए, चैरिटी. इज अ चैरिटी. एक चैरिटी है, सोशल वर्क है. इट्स अ नॉट ए चैरिटी विद मनी. ठीक है, फीस लेते हैं क्योंकि उनको भी अपने एक्सपेंसेस मीट आउट करने हैं, वरना पैसा कहाँ से आएगा, है ना? इट्स अ बार्टर सिस्टम ऑफ द सोसाइटी. बट द पॉइंट इज कि indirectly they are giving a social work, right? And any organization, either university, hospital or anything, if they are directly or indirectly are the part of social organization, we have to respect their property. ऐसा नहीं है कि हम हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करें एंड इंटर्नशिप करने के बाद हम सोचें अरे हमें तो यहाँ सिर्फ इंटर्नशिप ही करनी है, ठीक है, और इंटर्नशिप करें, हम वहां की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दे, या उतने पर्टिकुलर टाइम में, जितने टाइम में हम इंटर्नशिप कर रहे हैं या हम अपना जॉब कर रहे हैं, तो हम सोचे हमें क्या फर्क पड़ता है कि इसका जो बायोमेडिकल है वो कहाँ जा रहा है, हमें क्या करना है, उसका वेस्ट कहाँ जा रहा है. वाई वी शुड बॉदर फॉर द पेशेंट्स. हम तो थोड़े टाइम के लिए है यहाँ पर, अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं और चले जाएंगे, है ना? तो ऐसे नहीं हम सोच सकते, हम नहीं सोच सकते. और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो वी आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. हम है ही नहीं अच्छे इंसान, इसका मतलब, है ना? तो सब देखिए, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता है मैं पैरामेडिकल प्रोफेशन बनूंगा, कुछ भी. बट सबसे पहले हमें क्या बनना है? एक अच्छा इंसान. अगर हम अच्छा इंसान बन गए तो बाकी सब कुछ तो हम बन ही जाएंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ हम जो भी बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जज, नेता, जो भी हम बन रहे हैं, वो सिर्फ हम अपना पैसा कमाने के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए कर रहे हैं. लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, है ना? आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के हो, आप ये प्रोफेशन कह रही हो, रिलीजन के हो, आपको एक बात तो सबको पता होगी कि देर आर टू थिंग्स, वन इज बॉडी एंड व्हाट इन सोल, सेकंड इज सोल, है ना? बॉडी एंड सोल, देर आर टू थिंग्स. जब बॉडी और सोल दो चीजें हैं और हम खाना खा रहे हैं, पानी पीने, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? वी आर डूइंग फॉर आवर बॉडी. अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, एनर्जी के लिए, काम करने के लिए. पैसा कमा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी बॉडी को फिट करने के लिए हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, होम चाहिए, क्लोथ चाहिए. ये सब हमें चाहिए अपने बॉडी को फिट करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, है ना? टू रन आवर लाइफ. बट हमें अपनी सोल को रन करने के लिए क्या चाहिए? हमारी सोल भी तो है. कभी हम उसके बारे में सोचते हैं? हैव वी एवर थिंक अबाउट आवर सोल, कि हमारी सोल को भी तो कुछ चाहिए होगा. वो डायरेक्टली तो खाना है, हमने तो कभी उसे देखा नहीं, है ना? कैसे देखेंगे हम देखने की कोशिश ही नहीं करते कि हम अपनी सोल को देखेंगे कैसे, है ना?
जैसे मैं आपको एक रफ चीज बताती हूँ, हम आप भी देखते होंगे, आप सब लोग अगर यंग हैं, मतलब आई एम नॉट एबल टू सी यू योर फेसेस, अगर आप सब लोग यंग हैं और आप आपका जो साइकिल है वो ऐसे चलेगा कि आप अभी अर्न करें, पहले आप अपना प्रोफेशन में एजुकेशन लेंगे, फिर आप अर्निंग करेंगे, अर्निंग करने के बाद अपनी आप मैरिटल लाइफ में आएंगे, फिर आपके अपने बच्चे होंगे, फिर आप उनके बारे में सोचेंगे, राइट, और ऐसे ऐसे करते करते आप ओल्ड हो जाएंगे, राइट। ओल्ड होने के बाद फिर आप एक दिन तो सबको जाना है ना, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, सबको जाना है ना। देयर इज एंड ऑफ एवरी लाइफ इन दिस अर्थ, है ना। हर लाइफ का एंड है, चाहे वो क्रिएचर है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, कि हर लाइफ का एंड है। तो इस सब के बीच में हमने अपने बारे में सिर्फ अपनी बॉडी के बारे में सोचा, अपनी लाइफ को चलाने के लिए सोचा, लेकिन हमने उस सोल के लिए कुछ नहीं सोचा, जिसके लिए, जिससे हम कनेक्टेड हैं। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है, इस बात पे एनालिसिस किया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोल, सोल करती क्या है? सोल को चाहिए ये वैल्यू एजुकेशन, आपके बॉडी को नहीं चाहिए वैल्यू एजुकेशन। वो वो दीज वैल्यू एजुकेशन आर इनविजिबल। जैसे मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, ऐसे ये भी दिखाई नहीं देती, वैल्यूज दिखाई नहीं देती, ये फील की जाती हैं, ये आपके बिहेवियर में इनका रिफ्लेक्शन आता है। आप उनको ऐसे अपनी नेकेड फिजिकल आईज से नहीं देख सकते, अच्छा दीज आर ग्रीन, दीज आर वाइट, दीज आर येलो, यू कैन नॉट कंपेयर वैल्यू एजुकेशन लाइक दिस। दीज आर दीज आर द थिंग्स विच यू कैन फील, है ना। जैसे कोई कोई लोग कहते हैं हम एयर को फील करते हैं, पर दिखती भी है, जब बहुत तेज चलती है तो दिखती भी है ना। हम देख देख भी पाते हैं कि हवा चल रही है ना। तो हम महसूस करते हैं, लेकिन देखने से ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी पर्सन के अंदर एम्पैथी है, ट्रुथफुल है, ऑनेस्ट है, अगर ये सब चीजें हैं, तो वो क्या, कैसे फील, क्योंकि दीज वैल्यूज कैन बी फेल्ट, मतलब ये फील की जा सकती हैं विद वंस बिहेवियर। आप फील करोगे, आपके पास पेशेंट आएंगे, जब आप और प्रॉपर प्रोफेशन में आ जाओगे, आपके पास पेशेंट आ जाएंगे, तो पेशेंट आपके बिहेवियर को फील करेंगे कि आपका बिहेवियर क्या है ना, आपका कंडक्ट क्या है, राइट। तो दीज आर द सम पॉइंट्स जो हम जो हमें सी, मैंने आपको क्या कहा है कि ये आप ऑलरेडी दीज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर स्कूल, बहुत आपने स्कूल में मॉरल वैल्यूज, वैल्यू एजुकेशन पढ़ी होंगी। एंड इन आवर धर्मास, हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, every religion gives us some knowledge of the about God, about our culture, and about all these things, right? But while doing all these things, are we maintaining our value education since our whole life? Are we maintaining our value education since our whole life? This really matters a lot, right? See, some of the values which we studied are in an Indian wisdom, that satya, tap, dam, huh? धर्म, दान, दया, ये आपके थोड़ा मतलब आपको ऐसा लगेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये रिलीजियस क्लास है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये रिलीजियस क्लास हम पढ़ रहे हैं। नो, रिलीजियस क्लास इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली द एम ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज टू अर्न, बट वाइल मेंटेनिंग आर वैल्यूज। अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो सिर्फ पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। ये आप तब शायद रियलाइज कर पाओगे जब आप पैसा बहुत कमा लोगे, आगे पहुंच जाओगे, तब आपको फिर रिवर्स में आना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा दैट व्हाट आर द वैल्यूज, हमें इसको मेंटेन कैसे करना है, क्यों करना है मेंटेन। अब रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन टू मेंटेन दिस वैल्यू एजुकेशन? टू हैव पीस, टू हैव पीस इन वंस पर्सनैलिटी, है ना। वी नीड पीस इन आवर लाइफ, है ना, वी नीड पीस इन आवर life. Now, value education can be imparted in multiple ways: individualized learning, project learning, group learning, open learning, and anubhav experience. Right? अब now we are on the main point that what is the process of. अब हम ये जब value education की बात कर रहे हैं, लेकिन how to gain this value education इन स्कूल लाइफ और यूनिवर्सिटी लाइफ और कॉलेज लाइफ में हम वैल्यू एजुकेशन को गेन कर कैसे सकते हैं,
इस पे अब हमें थोड़ा सा देखना है कि हम कर कैसे सकते हैं। इंडिविजुअल लर्निंग, हम खुद, देर आर मेनी बुक्स इन द वर्ल्ड विच यू कैन स्टडी बाय योरसेल्फ, आप इंडिविजुअली आप उसे पढ़ सकते हैं, राइट, यू कैन स्टडी एंड you can study these books, ye this is, you can analysis, you can discuss with your teachers, right, you can discuss with your teachers. So this is individually but mode of learning. Now the second one is project learning. Now some now in our school, in our university, in our maybe if you are in the profession also, there are some projects which we need to do. Now, when we work on a same project, when more than one people work on the same project, then what all is required, that we need cooperation, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, है ना। जब हम ग्रुप में होते हैं और हमें कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए, तो हम ये सब चीजें थोड़ा सा बाय डिफॉल्ट भी सीख जाते हैं, राइट। ग्रुप लर्निंग, जब आपको ग्रुप्स में सिखाया जाता है, ओपन लर्निंग, है ना, एंड एक्सपीरियंस, और एंड में एक्सपीरियंस है कि जब आप खुद एक्सपीरियंस लोगे किसी चीज का, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएंगी दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, राइट। अब वैल्यूज इन एजुकेशन क्या है? पीस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, सबके साथ इक्वल बिहेव करना है, जस्टिस, देयर मस्ट, जस्टिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन ये हो चुका है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज दैट नीड तो हमें समझ में आ गई कि हमें नीड है, वी हैव टू बी इन नीड ऑफ, राइट, वैल्यू एजुकेशन, राइट। नाउ अब व्हाट इज, हाउ टू गेन, अभी हमने आपने पीछे वाली स्लाइड में देखा था दैट हाउ टू अटेन दिस वैल्यूज रिलेटेड टू राइट कंडक्ट। सेल्फ एक्सप्लोरेशन एक चीज होती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। What is self-exploration? Self-exploration implies a careful and critical examination, assessment and analysis of, ये word आप जरा please be careful about this word, that critical examination, not examination, not just examination, critical examination or assessment and analysis of one's own unrealized capacity and potential. This is done to unravel the true nature, inherent emotional, intellectual, ethical and spiritual dimensions that manifest in oneself. ठीक है? What are the other words of self exploration? Examination, study, right, distinction, exploration, investigation, probe, research. अब now what is how to do, मतलब अभी ये जो सेल्फ वैल्यू एजुकेशन की बात हो रही थी, अब what we do that हमें सेल्फ अपना, we have to check, we have to do the right conduct, we have to check our behavior, है ना, we have to check our behavior, we have to follow honesty, dedication, है ना, ये सब चीजें हमें फॉलो करनी है। तो ये कैसे होंगी, ये आएंगी कैसे? किताबें पढ़ने से तो नहीं आएंगी, है ना, और ना ही मॉरल एजुकेशन जो स्कूल में ली। परसर्वेंस माने होता है दृढ़ता। कोई किसी स्टूडेंट ने पूछा है व्हाट इज परसर्वेंस, तो इसका मतलब होता है दृढ़ता, कि आप कितने डिटरमाइंड हो किसी चीज को करने के लिए, है ना। सो अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट। तो ये चीजें आएंगी कैसे? सेल्फ एक्सप्लोरेशन डेवलप कैसे होगा? तो सेल्फ एग्जाम, खुद को एग्जामिन करने से। अब खुद को एग्जामिन कैसे करेंगे? हाउ टू एग्जामिन आवरसेल्फ, हम अपने आप को एग्जामिन कैसे कर, हम दूसरे के लिए तो बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, दैट ही इज राइट, ही इज रॉन्ग, दैट डॉक्टर इज राइट, दैट पेशेंट इज नॉट लाइक, मतलब हम वी आर वेरी गुड जज, बट
कैन डू वी एनालिसिस आवर सेल्फ ऑल्सो? क्या हम अपने आप को एनालिसिस करते हैं कि जो हमें करना था वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आर वी डूइंग द राइट कंडक्ट? आर वी इन द डिसिप्लिन? हाँ, अभी इस कोर्स में देयर आर 500 स्टूडेंट्स एंड ओनली few have attended this webinar. Why? Because they are busy somewhere. उन्हें लगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, अब एग्जाम होगा वो कुछ भी टिक कराएंगे, उन्हें पता ही नहीं चलेगा। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो डिग्री ले लेंगे, ठीक है, पास भी हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी, लेकिन डेप्थ में नहीं होगी, है ना? तो ये सबकी क्या है, इंडिविजुअल्स चॉइसेस बन जाती हैं। और वो कैसे बनती हैं? सेल्फ एक्सप्लोरेशन से बनती हैं। कोई there may be some student who really want to study, go in deep and want to know everything, and then they want to get the degree, and there are many students who don't want to go in deep, है ना, जो ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना चाहते, they don't want to get good knowledge, बस उन्हें लगता है कि ठीक है, मुझे तो MLT में ब्लड टेस्टिंग करनी आनी चाहिए, ऑटोमेटिक मशीन होती है, उनमें सैंपल रखा, टेस्टिंग हो गई, रिजल्ट आ गया, हो गया, क्या करना है, डिग्री मिल गई, बस डिग्री मिल गई जॉब लेने के लिए। अभी पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है, छोड़ो, क्या करना है पढ़ने के लिए? सोशल मीडिया ज्यादा जरूरी है, फेसबुक जरूरी है, व्हाट्सएप जरूरी है, यूट्यूब पे मूवीज देखना जरूरी है, OTT पे मूवी देखना, ये सब जरूरी है, पढ़ना थोड़ी जरूरी है। तो ये कैसे हमारे बिलीव्स बने अपने? क्योंकि वी आर नॉट, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था ना, दैट मीडिया इज समटाइम्स वी आर, हम समझते हैं जैसे कि किसी के हमने यूट्यूब पे देखा कि अरे उसके मिलियंस व्यूज है, तो हमें लगता है हम भी ऐसे कर लेंगे, हम भी बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। सिर्फ हम सोच लेते हैं। हम why we are not into the deep of that thing? Because we are not first analyzing ourselves that what we can do, हम क्या कर सकते हैं, what we can do. So what is the point here? That self exploration is very much required. There is a craving need for self exploration because it is you who knows you in full. क्योंकि तुम ही हो जो अपने आप को पूरा जानते हो, कोई भी नहीं जानता आपको, ना आपके टीचर्स, ना आपके भाई बहन, ना आपके दोस्त, ना आपके माँ बाप, ना आपको कोई नहीं जानता। एक एज के बाद आपको अपने आप को खुद जानना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, और what are the qualities which are lacking in my personality, and what are the qualities which need to be improved, right? अब what are the values related to this? When we talk about the values looking at the career option, अगर हम career option की बात करते हैं, you have number of, while looking into a career option, you have a number of avenues and options available. Though the choices are many, each has its own demanding requirement. You need to make a conscious choice so that what aspect of work inspire you, कि क्या काम करने से तुम्हें इंस्पिरेशन आती है. You need to make a conscious choices as to what aspect, to what inspire you. Based on that, if you make a considered choice, it may work well with you, right? There may be some remuneration. अब आपको क्या attract करता है? There may be many points which attracts to you while when you are in the profession. Remuneration, कि मेरे को क्या पैसा मिलता है, कितना मुझे पैसा मिलेगा, रेम्यूनरेशन, है ना? हाउ मच फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स कितने फ्लेक्सिबल हैं, बैलेंसिंग विद माय फैमिली, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, इंडिपेंडेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, क्रिएटिविटी, नेचर ऑफ वर्क, मिनिमल वर्क स्ट्रेस, रेगुलर वर्क रूटीन, सेंसिटिव टू फैमिली इश्यूज, टीम बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? ये आपको हेल्प करते हैं टू डिसाइड समथिंग, सेल्फ एक्सप्लोरेशन इन दी करियर. ये आपके करियर में हेल्प करते हैं ये वाले पॉइंट्स, राइट? नाउ अब यू हैव टू पिक एंड चूज दैट टाइप ऑफ कैरियर. आपको चूज करना होता है इन सब में से कि आपका रेम्यूनरेशन के बेस पे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क के बेस पे, इन सब के बेस पे आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज करना है. What type of working environment that I really enjoy, what kind, मतलब मैं जो आपको self exploration बता रही हूँ, that आपको you have to examine yourself. अब
बहुत सारे देखो, आई एम टेलिंग यू फेयर एग्जांपल। आई नो सम स्टूडेंट्स जो एमएलटी करने के 2 साल बाद या 1 साल करने के बाद वो एग्जिट करते हैं, कहते हैं अरे नहीं हमें एमएलटी नहीं करना था, हमें तो रेडियोलॉजी करना था। क्यों उन्हें एहसास हुआ? और कुछ ऐसे होते हैं जो एमएलटी करने के बाद एमबीए कर लेते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जो एमबीए करने के बाद एमएलटी कर, मतलब कुछ पता नहीं स्टूडेंट्स को कि कब क्या कर रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोगों को ये वाली नॉलेज शुरू में दी नहीं गई कि हमें अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करना है, कैसे है, हाउ टू डू। हम अपने आप को एनालिसिस करने के लिए हमें व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू क्लोज आवर आईज, वी हैव टू सिट इन द साइलेंस, वी हैव टू एनालिसिस ऑन दीज पॉइंट्स। अगर हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा करियर कैसे होना चाहिए, तो हमें करियर के बारे में पहले सोचना पड़ेगा कि हम कैसा करियर चाहते हैं। और उस करियर में मैंने आपको जो अभी पॉइंट्स बताए कि आपको जब आप व्हेन यू विल सेलेक्ट योर करियर कि आपको वाकई एमएलटी करना है, ओटी करना है, ये क्या करना है, तो आप या आप कहाँ जॉब करोगे, किस हॉस्पिटल में करोगे, अपनी लैब खोलोगे, गवर्नमेंट जॉब करोगे, क्या करोगे, ये सब करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को सोचना पड़ता है। यू नीड टू एक्सप्लोर सम पॉइंट्स एंड दीज पॉइंट्स जो मैंने अभी बताए आपको, राइट। अब जब ये आप कर लेते हो तो अब आपको क्या करना है, अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। यू नीड टू आस्क सम क्वेश्चन बाय फ्रॉम, मतलब आपको आप ही को क्वेश्चन पूछना है। यू हु विल आस्क द क्वेश्चन? यू। एंड टू whom you will ask the question? yourself. What type of working environment what I really enjoy, what kind of person I would like to work with, do I like to work under tough time schedule, how do I make proper decision, how would I fulfill and assign tasks to me, can i can I do things confidently on my own, do I have a vision for the future? These are some of the questions which you need to ask by you to you। ठीक है, आपको पूछने हैं क्वेश्चन, और किससे पूछने हैं? खुद से ही पूछने हैं, किसी और से नहीं पूछने। क्योंकि आपको अपनी लाइफ को सेट करना है। आपको पहले अपने बारे में, अपनी वैल्यूज के बारे में, अपनी पीस के बारे में सोचना है। अपने आप को आप ठीक कर लेंगे, अपने आप को पीसफुल कर लेंगे, तो दुनिया पीसफुल हो जाएगी। ठीक है। दूसरे को, एक स्टूडेंट ने लिखा है मैम एमएलटी कंप्लीट होने के बाद मैं एक्यू भी करूंगा फॉर माय सेटिस्फेक्शन, बट मेरा करियर एमएलटी के साथ प्रोलॉन्ग करेगा। आई एम नॉट आस्किंग यू पीपल, आप सबसे मैं नहीं पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले हो। हाँ, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल आई गेव यू, राइट, इट्स नॉट एन आई एम आस्किंग यू। ठीक है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप अपने आप से बात करेंगे, है ना। आप अपने आप से बात करेंगे, क्योंकि जो सेल्फ है, जो हम खुद हैं, वो क्या है? दैट सेल्फ इज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड एज फॉलोज। इट इज द विटनेस ऑफ द 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कंसिस्टिंग ऑफ वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप। हमारी 3 स्टेजेस होती हैं कॉन्शियसनेस की। जब हम जगे हुए होते हैं, मतलब व्हेन वी आर वेकन अप, व्हेन वी आर इनटू द ड्रीम्स, जब हम सो रहे होते हैं, सपनों की दुनिया में होते हैं, एंड व्हेन वी आर इनटू द डीप स्लीप। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड डीप स्लीप। जब हम स्लीप में होते हैं, देन वी हम अपनी स्लीप में ड्रीम्स देखते हैं, और वो ड्रीम्स उससे रिलेटेड होते हैं जो हमारे पास, जो जीवन में चल रहा होता है, कभी पास्ट में हुआ होता है या फ्यूचर में हुआ होता है। तो वो ही कैसे ना कैसे करके हमारे ड्रीम्स में आ जाता है। लेकिन एक होती है डीप स्लीप, जो हमारे उन ड्रीम्स से जुड़ी होती है जो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, या हम जो हमारे जो हमें इजीली तो पता ही नहीं चलेगी कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में व्हाट इज देयर इन आवर अनकॉन्शियस माइंड, हम चाहते क्या हैं, वो हमको कहाँ मिलेगी? वो हमें हमारी डीप स्लीप में मिलेगी। और डीप स्लीप कैसे मिलेगी वो एक बाद में डिस्कशन का पॉइंट है, राइट।
तो अभी आप इतना समझिए, इट एग्जिस्ट ऑलवेज वेदर इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, या प्रेजेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, है ना। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कर रहे होते हम। इट इज एवर इन द स्टेट ऑफ ब्लिस, it is different from the gross and subtle body, it is insoluble। ये these are some points which can study from your notes also, आप पढ़ सकते हो अपने नोट्स में से। मैंने अभी आपको बताया था कि नीड्स क्या होती हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन की। आई थिंक वो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ सेल्फ। अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन प्रोसेस फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के लिए होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेस द राइट मेंटल एटीट्यूड, आपका मेंटल एटीट्यूड करेक्ट होना चाहिए। आइडेंटिफाई द एग्जामिन द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए दैट विच वन इज द प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। pursue the deeper emotion, disconcern the connectivity with the emotion, determine the intrinsic beliefs and values, draw the boundaries and responsibilities। ठीक है, तो these are some self exploration process, ठीक है, कि हमारा जो मेंटल एटीट्यूड है वो ठीक होना चाहिए, और प्रॉब्लम्स और इश्यूज हमें बहुत ठीक से पता होने चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं किसी चीज की और क्या क्या उसके इश्यूज हैं। नेचुरल एक्सेप्टेंस एक चीज होती है कि हम कुछ चीजों को नेचुरली एक्सेप्ट करें, दैट वेदर आई वांट टू बी लव्ड, ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेड बाय अदर्स, क्या लोग मुझे प्यार करें, एम आई अ राइट पर्सन कि मेरी रिस्पेक्ट की जाए, मुझे कोई लोग प्यार करे। वेदर आई नीड फिजिकल कंफर्ट ऑल द टाइम, क्या मुझे हमेशा फिजिकल कंफर्ट चाहिए। ये मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप शांति से खाली बैठकर, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ में हो, चाहे आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या कुछ भी, बट यू हैव टू बी सेल्फ एक्सप्लोरेटरी, आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना है। क्यों करना है? क्यों करना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन? वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू अपने अंदर ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाने के लिए। अब ह्यूमन वैल्यूज क्यों बढ़ानी है? क्योंकि अल्टीमेटली द गोल ऑफ द लाइफ इज टू हैव ब्लिस इन लाइफ। सबको चाहिए खुशी, हैप्पीनेस। क्या? क्यों? क्यों पैसा कमा रहे हैं ज्यादा? क्यों घूमने जाते हैं, है ना? क्यों अच्छा करियर बनाना चाहते हैं? क्यों? हर बात के पीछे एक ही रीजन है, दैट वी वांट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, कि हमें लाइफ में क्या चीज चाहिए? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस चाहिए हमें। और हैप्पीनेस, मैंने आपको एक राउंड सर्कल है वो आपको मैंने बता दिया कि आप अपनी ह्यूमन वैल्यूज को बड़ा अच्छा करने के लिए, राइट के लिए जब वर्क करेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर क्या सेल्फ ये बढ़ेंगी, वैल्यूज बढ़ेंगी, ह्यूमन वैल्यूज बढ़ेंगी। अब ह्यूमन वैल्यूज बढ़ेंगी तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पैसे में शांति नहीं है, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? हैप्पीनेस, कि आपके पास जो है, वॉट एवर यू हैव इन योर हैंड, यू हैव टू बी हैप्पी, and there is no point of being happy, that when to be happy, how to be happy, and where to be happy. There is no point to discuss that what is the reason behind the happiness. Happiness is a feeling which can only be attained when you go in analysis of yourself or your own situation, then you will become happy, right? Now come to the next point. As per this as far as syllabus is concerned, do you know that these topics are incorporated by the university grant commission? ये जो this topic है, human values and professional ethics, this is incorporated by the UGC ने बहुत सारे professional और unconventional course में ये topic incorporate किया, because the present need is to make the balance happy mind, क्योंकि सिर्फ एजुकेशन अटेन करने से, एक्वायर करने से
आप खुश होंगे या आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा। ये कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा। जो डिस्ट्रक्टिव माइंड होते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड जो होते हैं, वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनका माइंड कंस्ट्रक्टिव नहीं होता, डिस्ट्रक्टिव होता है। अब जैसे आपने सुना ही होगा कि अभी रिसेंटली, मान लीजिए, आई एम नॉट कंफर्म, मेरे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है इस बात के, लेकिन कोरोना टाइम ने हम सबने सुना कि ये वायरस है जो कि मैन मेड है, यानी कि नेचर ने हमें ये वायरस नहीं दिया, ये मैन मेड वायरस है ना। तो किसी ने तो बनाया है, किसी ह्यूमन बीइंग ने तो बनाया। अगर इफ इट इज ट्रू तो ये किसी ने बनाया है तो किसने बनाया है? जो लोग वायरस जैसी चीज बना सकते हैं, तो आप सोचो कि वो कितने इंटेलिजेंट होंगे, है ना। उन्हें कितनी प्रोग्रामिंग आती होगी, दे नो द प्रोग्रामिंग, दे नो एवरीथिंग, राइट। उन्हें सब कुछ पता है मेडिकल के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में, देन दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट नाउ। बट व्हाट दे आर डूइंग, they are destructive mind, they are destroying the universe, they are giving uh, they are giving negative power to the world. So they are not the right people, right? They can never be happy. They can never be happy. They can have money, they can live their life with luxury and all, but they can never be happy, right? So education without value education is just a education to earn money. जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, मनी अर्निंग के लिए तो एक चार्ट वाला चार्ट भी बेच लेता है ना। एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, सबने अपने प्रोफेशन चूज किए हैं। कोई भी प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता, इवन कोई लोग स्वीपर होते हैं, है ना। तो वी हैव टू गिव वैल्यू टू ईच एंड एवरी प्रोफेशन। बट कौन अपने प्रोफेशन को, एक डॉक्टर है, कहने को वो डॉक्टर है, ठीक है, और उसका एक अच्छा वैल्यू प्रोफेशन है, रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बट मान लीजिए वो पेशेंट्स को गलत मेडिसिन दे रहा है या एक्यूरेट मेडिसिन नहीं दे रहा, वो चाहता है कि पेशेंट उसके आसपास ही घूमते रहे, इसलिए पेशेंट्स की बीमारी, उनको गलत मेडिसिन दे रहा है, ठीक है। तो इज दिस अ राइट कंडक्ट? बताइए आप, इज दिस अ राइट कंडक्ट? नो। आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं और बीइंग आप जो डॉक्टर्स हैं, ओटी के टाइम पे, रियल टाइम ऑपरेशन के टाइम में वो आप पे डिपेंड रहेंगे। वो अपनी नॉलेज के साथ साथ आपके अपरेटस कितने आपने, स्टरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो स्टरलाइजेशन इज अ प्रोसेस जहां पर हम एपरेटस को क्लीन करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि इन्फेक्शन के चांसेस हैं और आप उसे एपरेटस को क्लीन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आपने ऐसे ही रख दिए, तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। तो अब ये क्या चीज है? इट इज अ पार्ट ऑफ राइट कंडक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ राइट कंडक्ट। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि एजुकेशन लेना एक बात है, लेकिन एजुकेशन विद वैल्यू एजुकेशन लेना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ में। एजुकेशन विद वैल्यू एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम एजुकेशन वैल्यूज के साथ लेंगे, जो मैंने आपको वैल्यूज बताए, ट्रूथफुलनेस, राइट कंडक्ट, कामनेस, हैप्पीनेस, ये सब के साथ अगर हम एजुकेशन अटेन करते हैं, तभी हम एक सबसे पहले जो हमें जो बनना है, दैट इज वी मस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वो तभी हो पाएगा जब एजुकेशन के साथ वैल्यू एजुकेशन होगी। अच्छा, इन सब चीजों को आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ पे लेके देखिए कि आप गए, आपका फैमिली मेंबर कोई बहुत बीमार है, ठीक है, मान लीजिए, भगवान ना करे किसी का हो, आपका बीमार है और आप गए हॉस्पिटल में, आपने टेस्ट कराया, आपका ऑपरेशन होने वाला है, और टेस्ट कराने से पहले जो लैब में आपका सैंपल गया, उन्होंने आपकी रिपोर्ट्स को ऊपर नीचे कर दिया। अब उन रिपोर्ट्स के बेस पे आपका ऑपरेशन, आपके किसी रिलेटिव का ऑपरेशन होना है, तो ऑपरेशन में जो आपको मेडिसिन दी जाएंगी और जो आपका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा या जो भी सब चीजें होंगी, वो आपके टेस्टिंग के रिजल्ट्स पे बेस्ड है। और अगर टेस्टिंग के रिजल्ट सही नहीं है तो बहुत सारी चीजें आगे तक गलत हो जाएंगी, ठीक है। तो वो जो गलत हो जाएंगी उसका जिम्मेदार कौन है? यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स। तो आपने पैसा कमा के क्या किया? कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने या जिसने भी पैसा कमाया क्या कुछ नहीं किया, उसके बाद उसका जो राइट कंडक्ट है वो खराब हो गया,
है ना। तो आप जो चीज अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो चीज आपको अपने लिए रॉन्ग कंडक्ट लगती है, वो आपको दूसरों के साथ भी नहीं करनी है। बस इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वेबिनार। मैं आज के लिए काफी है, क्योंकि वो ओवरलैपिंग हो जाता है ज्यादा एक ही क्लास में। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा और बताऊंगी कि हैप्पीनेस और इन सब चीजों के बारे में। आप में से कितने लोगों को वेबिनार अच्छा लगा, मतलब बातें मतलब समझ में आई और ठीक लगा, और कितने लोग दोबारा ज्वाइन करना चाहते हैं, मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है, कितना आप जो है दोबारा करना चाहते हैं। मतलब कितने स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं इसका एक और लूंगी, इसका पार्ट एक दो पार्ट्स में और लूंगी ये वेबिनार। आपके एग्जाम्स हैं सर, आपको पता होगा, है ना। तो थैंक यू फॉर दिस। होप मेरे को जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, और जितना भी आपको इस टॉपिक को बहुत एक्सप्लेन कर सकती थी मैंने किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। होप आपको बात, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये है ही, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो रियली इट इज नीडेड फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।